اننت ناگ کے آروانی بجبہاڑا علاقے میں ملیٹنٹوں نے فوج کی گشتی پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فوجی اہلکار معمولی طور پر زخمی ہو گیا۔ واقعے کے فوری بعد فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا اور مفرور حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق فورسز کی جانب سے محاصرے کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے اور کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اس دوران علاقے میں مشتعل افراد نے فورسز کے آپریشن میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور پتھراؤ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فورسز نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے۔ جموں کشمیر ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے کہا ہے کہ محروسین کو بہت جلد رہا کیا جائے گا، ان کے کیسوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہیں احتیاطی طور پر محروس سیاسی قیدیوں اور تاجر لیڈروں کے بارے میں پوچھے جانے پر فاروق خان نے کہا کہ رہائی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ وہیں کم سپیڈ یعنی 2G انٹرنیٹ سے پریشان صارفین کو ایل جی کے مشیر نے صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ پروسیس ہے، شروع میں جتنے لوگ بند تھے ریویو ان کے کیسز ہوتے گئے اور وہ چھٹتے گئے، باقی لوگ بھی اسی طریقے سے آئیں گے۔ جوں حالات امپروو پوری طرح سے ہوتے جائیں گے یہ لوگ باہر پریونٹیو کسٹڈی جن کی ہے سر، ان کی تو اتنے سارے کیسز تو ویری فرڈ کہ پریونٹیو کسٹڈی کس کے لیے ہوتی ہے؟ پریونٹیو کسٹڈی ہوتی ہے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا ریویو میں ثابت کہ ان کے باہر آنے سے کوئی امن میں خلل نہیں پڑے گا تو ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور اس میں اتھارٹیز جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے وہ کانسٹنٹ ریویو کرتے رہتے ہیں۔ 26 تاریخ کو یہ روایت رہتی تھی کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کنوکٹڈ کو بھی چھوڑا جاتا تھا۔ 5 اگست کے بعد روایتوں کے اوپر مت چلیے، اب ڈیولپمنٹ کی طرف چلیے۔ ہم نئے جموں کشمیر کی طرف چل رہے ہیں، روایتوں کے اوپر اگر ہم جاتے تو شاید ہم کبھی بھی ترقی کے راستے پر چل ہی نہ پاتے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، 2G کا اعلان تو ہوا یہاں پہ، لیکن سب پھول کھول کے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں وہی 3GP کا سسٹم ہے، کچھ کھلتا نہیں ہے۔ کھلتا تو ہے، ذرا تھوڑا وقت لگتا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس نے پولیس گیلنٹری میڈلز سے پارٹی کے بانی محروم شیخ محمد عبداللہ کا نام ہٹائے جانے کی مذمت کی ہے۔ NC لیڈر عمران نبی ڈار نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے تمام حربے اپنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے تئیں شیخ محمد عبداللہ کی خدمات کافی زیادہ ہیں۔ شیر کشمیر کے نام پر جو سیاست کی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے، اور ہم اس کو جو ہے کڑی نندا کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں جس طریقے کے بیانات بی جے پی کی لیڈرشپ سے آ رہے ہیں، اور بالخصوص جو کل جموں اینڈ کشمیر گیلنٹری ایوارڈ سے شیر کشمیر کا نام ہٹایا گیا اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو مجھے لگتا ہے خیال میں ہوگا کہ بی جے پی کی جو سیاست ہے یہ ہمیشہ جھوٹ پہ میسر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں ہے، یہ بھارتیہ جھوٹی پارٹی ہے۔ انہوں نے پورے کنٹری میں ایک جھوٹ کا ماحول پھیلایا ہے، اسی کی کڑی آج جموں اینڈ کشمیر میں بھی دکھ رہی ہے۔ شیر کشمیر کا کنٹریبیوشن جو JNK کو اسٹیٹ کو بنانے میں لگا ہے وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی انڈیویجول کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو انسٹیٹیوشنز یہاں JNK میں آج بنے ہیں، جو تیار ہیں، جو اس ٹائم پہ فلرش کر رہے ہیں، وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ شیر کشمیر کی بدولت ہے۔ جموں کشمیر کے خاتون اول سمیتا مرمو نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ وہ آج جموں میں محکمہ کھیل کی طرف سے منعقدہ خواتین کے ایک ثقافتی پروگرام کے موقع پر خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کئی والدین لڑکیوں کو باہر بھیجنے سے کترا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑکیوں کو ہر شعبے میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کئی ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام ہوا۔ پلیٹ فارم کی کمی دیکھیے جو میٹرو سٹیز وغیرہ میں یا جو شہر ہے ان میں تو نہیں ہے، بٹ آف کورس ولیجز میں تھوڑا سا دقت ہے، کیونکہ ایک تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی کنزرویٹو فیملیز ہیں ہمارے یہاں، تو لوگ لڑکیوں کو بہت کھل کے آگے بڑھنے دینا نہیں۔ کچھ فیملیز میں یہ سب چیزیں ہیں، ٹیبوز ہیں کہ نہیں باہر نہیں جانا ہے، آفٹر سن سیٹ اپ کو نہیں کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا وہاں پہ گاؤں میں خاص کر ہمارے کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا سا ہم آگے لائیں، ان کو صحیح مارگدرشن، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کرا پردھان کی، بیکاز میں ایک NGO چلاتی ہوں، تو میں جاتی ہوں اڑیسہ وغیرہ میں ریموٹ ایریا میں، بہت ٹیلنٹ ہے
बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलने से, फाइनेंशियली भी एंड फैमिली का भी, सोशल प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर बहुत, तो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उन चीज़ों को हमको हटाना है, और ख़ासकर शहरों में जो है, मतलब जो लोग हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा जाके ना काम करें। स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। स्टूडेंट ही, मतलब बच्चे ही बच्चों को समझा सकते हैं। सो दैट उस फील्ड में हमें काम ज़रूर करना चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए इसमें। बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान आज फिर एक बार फजाई सर्विसेज बहाल की गई। इस दौरान दर्जनों दरमांदा मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया। आज बांडीपुरा गुरेज और गुरेज श्रीनगर के दरमियान प्राइवेट फजाई सर्विसेज चलाई गई। इसके अलावा सुनरवानी हेलीपैड से भी फौजी तैयारी के जरिए दरमांदा मुसाफिरों को गुरेज पहुंचाया गया। इसी दौरान गुरेज के पंचायती मेंबरान ने मुतालबा किया कि गुरेज के लिए फजाई सर्विसेज बाकायदगी के साथ चलाई जाए ताकि बर्फ से ढके इस इलाके के लोगों को फजाई सर्विसेज का हकीकी फायदा मिल सके। इन पंचायती मेंबरान का मजीद कहना था कि बार बार फजाई सर्विसेज में खलल पड़ने की वजह से लोगों को हेलीपैड पर आने और वापस जाने में दुश्वारियां हो रही हैं और इस तरह लोगों को इस फजाई सर्विसेज से सहूलत से ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। इन पंचायती मेंबरान ने गुरेज और तुलेल में हालिया बर्फबारी से हुए नुकसान का तखमीना लगाने और मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा भी किया। वहाँ बीमार भी हैं, कोई लोग पेशेंट भी हैं, तो हमें मेहरबानी करके कि हमारे स्टूडेंट फंसे हुए गुरेज में भी हैं, यहाँ टीचर हैं, उनको वहाँ गुरेज जाना है, वो परेशान हैं, तो मेहरबानी करके हमें हेली सर्विस की कोई इंतज़ाम किया जाए तो हम गुरेज जा पाएँ, क्योंकि हम यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं। गुरेज के क्योंकि 6 महीने 7 महीना बर्फ़ उधर होती है, रोड का कोई इंतज़ाम है नहीं, तो उधर से भी कोई मुसाफिर है वो भी मजबूर है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें जहाज़ मिलना चाहिए। इधर के लोग सफ़र करते हैं, हेलीपैड जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। कि तिलेल के कई गाँवों का इस वक्त तक भी अता पता नहीं है। गुज़श्ता दिनों की जो बर्फबारी हुई है उसमें बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। एक घर पूरा दब गया, उनमें से उनका एक हेड ऑफ द फैमिली जो मर गया और बाकी 5-6 उनके जख्मी हुए थे। महकमे मौसमियात ने वादी में कल यानी 28 जनवरी से 29 जनवरी तक दोबारा बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मैदानी इलाकों में हल्की और बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे से बर्फबारी हो सकती है। साथ ही महकमे ने बालाई इलाकों के बाशिंदों को इस दौरान काफ़ी होशियार रहने की तलकीन की है। महकमे मौसमियात ने बर्फबारी के बाद इस महीने के आखिर तक मौसम अक्सर खुश्क रहने का इम्कान है। जब भी कोई हैवी स्नोफॉल होते हैं तो जो स्नोबाउंड एरिया में जो रहते हैं उनका हमेशा हमारा चेतावनी रहता है कि आप सतर्क रहे, थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर ले, कॉशियस रहे, क्योंकि आप थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है, एहतियात बनना, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होता है तो एवलांच वगैरह आने का खतरा रहता है जहाँ पे स्नोबाउंड एरिया है में, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होता है। तो इसी तरह मेरा अगेन हमारा एडवाइजरी बोलो या चेतावनी बोलो ये यही रहेगा कि जो खास करके इस बार स्नोफॉल ज़्यादा होने वाला है पुंछ, राजौरी या साउथ कश्मीर और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज साइड से पीर पंजाल एरिया में, तो वहाँ के लोगों को मैसेज ये जाता है कि अभी खास करके 28 यानी कि कल शाम और परसों के बीच में थोड़ा कॉशियस रहे, सेफ रहे, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद मौसम अमूमन ठीक है। जम्मू कश्मीर एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने फॉरेस्ट एरिया को वुसअत देने के लिए महकमे जंगलात के अफसरान की सताइश की। फारूक खान श्रीनगर में बर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्निथोलॉजी के हवाले से एक तरबियती प्रोग्राम के मौके पर मौजूद थे। ये प्रोग्राम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। इसके जरिए कौमी सतह के ट्रेनर्स नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। एलजी के मुशीर ने तरबियती प्रोग्राम में अवामी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुशीर फारूक खान ने श्रीनगर के कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा उन तमाम फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जिनकी अनथक कोशिशों से ये मुमकिन हो पाया है, वरना जिस स्पीड के साथ जंगलात को काटा जा रहा था कुछ खुद गर्ज लोगों की तरफ से, तो लगता था कि शायद ख़ुसूसी तौर पर कश्मीर से शायद जंगल बिल्कुल नीस्त नाबूद हो जाएगा। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। अभी बहुत कुछ करना बाकी है
اور ہم چاہیں گے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ابھی چوتھے نمبر پر آیا ہے پر اس انکریز میں، تو وہ نہ صرف ایک نمبر پر آئے بلکہ وہ باقی کنٹری کے لیے بھی، باقی ملک کے لیے بھی ایک ایگزامپل بنے. This is what is a very big important treasure, the biodiversity that you have, the fabulous inaccessible lakes which have a very serene, quiet and a biodiversity environment around it. You are living in paradise, but the people of India and the people of the world do not know the other aspect of biodiversity. اننتناگ کے مٹن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چوروں نے لگ بھگ 1 درجن سے زائد دکانوں کے شٹر توڑ کر نقب لگانے کی کوشش کی. اس دوران چوروں نے گزشتہ رات کئی دکانوں سے رقومات اور ضروری اشیاء لوٹ لی ہے، جبکہ دکانوں کو لوٹنے میں چور ناکام رہے ہیں. اس سے قبل بھی چوروں نے اسی علاقے اور منشگام اشمقام میں رہائشی مکانات میں نقب لگائی، تاہم پولیس ابھی تک ان چوروں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے. لوگوں نے چوریوں کی بڑھتی واردات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اور متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایس ایس پی اننتناگ اور ایس ایچ او مٹن سے بھی چوریوں میں ملوث افراد کا جلد سراغ لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. لوگوں نے رات کے دوران قصبہ مٹن کے پی روڈ اور دیگر علاقوں میں پولیس گشت کی بھی مانگ کی ہے. ونس تام ترٛیٚیمہِ لٹہِ مےٚ ونس تام ژوٗر گٔمٕژ. بہٕ چھُس کران گورمنٹس پُرزور اپیل کم از کم گژھِ یتھ گژھُن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گژھِ نیرُن. یِم ژوٗر چھِ یہِ چھُ آسان ہمیشہِ خٲطرٕ أسۍ چھِ گورنر صٲبس پُرزور اپیل کران کم از کم گژھِ پُرسان تُلُن، بیٚیہِ گژھِ یتھ روزُن شامنس پُلیٖس گشتہٕ. اَسہِ حظ چھِ گژھان ییٚتہِ کنٹِنیوٗ ژوٗر، آز گٔے 3یِمہِ لٹہِ حظ بیٚیہِ ژوٗر. یپٲرۍ چھُ آسان تھوڑا یہِ پاور تہِ حظ کٔرِتھ مُنقطع. أسۍ چھِ کران پُرزور اپیل ییٚتہِ کِس ایس ایچ او صٲبس کہِ یِم ژوٗر رٔٹۍتوکھ تاکہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کہو پُرسکوٗن زندگی گُزٲرِتھ. مےٚ اوس گلتانس منٛز مال کینٛہہ پونٛسہٕ تِم تہِ چھِکھ نِمٕتۍ. تمام دُکانن چھِ ژوٗر گٔمٕژ. سینٹرل لاک چھُ پھٕٹرومُت، تقریٖبن 10-15 دُکانن چھِ ژوٗر گٔمٕژ. پُلیٖسس چھنہٕ کٕہٕنۍ پتہ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ کیٛاہ سِلہ چھِ، یہِ کُس چھُ کران کیٛاہ چھُ کران. وۄنۍ چھِ أسۍ مُطالبہٕ کران کہِ امیُک گژھِ پوٗرٕ پتہ لگٕنۍ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے. سون مُطالبہٕ چھُ اَسہِ حظ نِیَکھ پونٛسہٕ تہِ، اَسہِ حظ نِیوکھ یہِ حظ یہِ سِگریٹ وِگریٹ نِیَکھ تَتھ منٛز کینٛہہ، مگر سون مُطالبہٕ چھُ یہِ کٔرِتھ. دہلی کے گریٹر کیلاش میں آج کشمیری پنڈتوں کی جانب سے ماں شاردا دیوی کی پوجا ارچنا کی گئی. اس پوجا ارچنا میں ہانگ کانگ سے آئے کشمیری پنڈت کنبے نے بھی حصہ لیا. یہ کنبہ 72 سال بعد پاکستان میں قائم شاردا پیٹھ میں جا کر درشن کر کے آئے تھے. اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی موجود تھے. پی او کے میں واقع شاردا پیٹھ میں کشمیری پنڈت درشن کر پائے. اس کے لیے لڑائی لڑ رہے پنڈت رویندر پنڈتا بھی موجود رہے. پارٹیشن سے پہلے ہم وہاں جاتے تھے، وہاں میلہ لگتا تھا اور درشن کرتے تھے ہر دن ایک سے. پارٹیشن کے بعد پچھلے 70 سالوں سے یہ ہو نہیں پایا، ہمیں جانے کا موقع نہیں ملا وہاں جانے کے لیے. اب ہم پچھلے 10 سال سے اس میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم وہاں جا پائیں اور دوبارہ سے وہاں اپنے پوجا کریں، جو بھی ہماری آستھا ہے وہاں جانے کے لیے. ہم نے بھی پاکستان سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی ہے اس شاردا مائی کے مندر کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور ایک ہیریٹیج بن جائے. لیکن وہاں سپریم کورٹ وہاں پی او کے میں الگ ہے، انہوں نے وہ ریفر کی ہے سپریم کورٹ آف پی او کے، اور وہاں آن دا بیسس آف یہ سپریم کورٹ پاکستان نے خود ہی ریفر کی چل رہی ہے اور اس میں بھی انہوں نے ایک جو ججمنٹ بھی دی ہے ہمارے پاس ہے، ہم نے پہلے بھی دکھائی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے رکھا ہے گورنمنٹ آف پی او کے کو لکھا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو، اور دے آر پروٹیکٹنگ اٹ. کہ ہم کہہ رہے تھے کراس ایل او سی جو پرمٹ رولز ہیں، ایل او سی پرمٹس میں ترمیم ہو جائے، تو وہ اب تو رہا نہیں. ابھی نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ آف انڈیا کو، چونکہ ایل او سی پرمٹ ایبالش بھی نہیں ہوا رول پر. ایل او سی ٹریڈ اور ایل او سی پرمٹ جو ابھی بند ہے، تو کچھ پاکستان نے ایک بند کیا ہے، کچھ ایک ٹریڈ والا ہندوستان نے بند کرا. تو اب کیا صورتحال رہے گا، کیا شکل لے گی ہماری اسٹرگل. ہماری اویئرنیس جاری، ہم اویئرنیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان گورنمنٹ کو بھی پھر لکھا ہے، انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بھی پورا اپنی بھارتی سرکار سے سمپرک میں ہے. میرا ایک الگ رول ہے کہ ہم سول سوسائٹیز اپنے آپ بھی کچھ قدم لیں، ہم سارا کچھ سرکار پہ نہ رکھیں، ہم بھی اپنے لیول پہ کام کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ایسے ایل او سی کے اس پار اور اس پار جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں،
LOC का ट्रेड चालू हो जाए, दोबारा यात्राएं शुरू हो, ज़ियारतें दोनों तरफ से, हम इसके लिए पूरी पहलकदमी करेंगे। गुलमर्ग में इन दिनों सयाह स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। महकमे सयाहत की जानिब से सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए स्कीइंग का जदीद साजो सामान फराहम किया जा रहा है। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस साल भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन जगह है और यहाँ पर हर साल सरमाई खेलों के मुकाबलों का इनकाद किया जाता है। गुलमर्ग में जहाँ मुल्की व गैर मुल्की स्कीयर स्कीइंग करने के लिए आते हैं, तो वहीं कश्मीर के मकामी लोग भी खासी तादाद में स्कीइंग करते हैं। यहाँ लोग खासकर नौजवान स्कीइंग की तरबियत हासिल करते हैं, तो कुछ सैर व तफरीह की गर्ज से दिन भर स्कीइंग करते हैं। सरमाई खेलों के फरोग और नौजवानों को इस जानिब राग़िब करने की गर्ज से गुलमर्ग में महकमा सयाहत का स्कीइंग शॉप भी मौजूद है, जहां जदीद साजो सामान और मलबूसात दस्तियाब हैं। यहाँ से मुख्तलिफ एकेडमियाँ, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ इदारे साजो सामान हासिल करते हैं। मकामी लोग जो गुलमर्ग की सैर व तफरीह के लिए आते हैं, वो भी यहाँ से स्कीइंग का सामान किराए पर लेते हैं। इस स्की शॉप से महकमे सयाहत को अच्छी आमदनी होती है। बहुत फैसिलिटी है यहाँ गुलमर्ग टूरिज्म ने रखा है, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा, जो भी जितने भी टूरिस्ट आएंगे या लोग आएंगे, सबों को यहाँ टूरिज्म ने फैसिलिटी रखी है। सामान, नया सामान लाया, स्नो स्कीज, स्नो बूट और स्नो स्टिक, सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास ड्रेस भी है, जो कुछ वो ढूंढेगा हम टूरिज्म में सब कुछ है। स्कीइंग की तरबियत देने के लिए माहिर इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं, जो सयाहों और मकामी लोगों को स्कीइंग कराना सिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए मकामी नौजवानों का कहना है कि वो बर्फबारी के मुंतज़िर होते हैं ताकि वो गुलमर्ग में स्कीइंग करने के लिए आ सकें। गुलमर्ग में इन दिनों छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग स्कीइंग करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से सरमाई खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनाकिद किए जाते हैं। यहाँ से काफ़ी तादाद में बैनुल अक़वामी स्कीयर भी तैयार होते हैं, जिन्होंने मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। मैं यहाँ स्कीइंग के लिए आया हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, नेचुरल स्लोप्स भी है यहाँ पे। ये तो गुलमर्ग की खासियत है, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल स्लोप्स है। तो यहाँ पे जो ट्रेनर्स है वो हमें अच्छी तरह से सिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है स्कीइंग के हवाले से। बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ के ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सिखाने में। इंस्ट्रक्टर हूँ, यहाँ पे बच्चों को सिखा रहा हूँ सर 5-6 साल से। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है, तो अलबत्ता थोड़ी सी यहाँ पे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट को अच्छे से स्लोप्स को प्रॉपरली रेडी रखना चाहिए। सर स्की के हवाले से अगर मैं आपको बोलूँगा सर, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस गेम में। ये एक मीन्स के मेन अट्रैक्शन है गुलमर्ग की, और बहुत दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। गुलमर्ग आए हुए मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ मौजूद कुदरती खूबसूरती और खासकर स्कीइंग के लिए नेचुरल स्लोप्स से बेहद मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में स्कीइंग करने का अच्छा तजुर्बा हुआ है। सयाहों ने कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी और गुलमर्ग होटेलियर्स की भी तारीफ की। उन्होंने कश्मीर को सबसे ज्यादा महफूज जगह करार दिया। यहाँ का होटल स्टे बहुत अरेंजमेंट था, और फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इट्स बेटर देन स्विट्ज़रलैंड। और स्पेशली मैं यहाँ का माहौल वगैरह सब बिल्कुल सूटेबल है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। सारे जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं श्रीनगर से लेके यहाँ तक, सभी ने बहुत अच्छे से हमको वेलकम किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और साथ में अगर हम देखें तो स्कीइंग के जो स्लोप्स हैं वो सब यहाँ पर नेचुरली आपके क्रिएटेड हैं, और रियली जो स्कीइंग लवर्स हैं दे कैन एंजॉय अ लॉट। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जून में भी आई थी, जिसके बाद डिसाइड किया था विंटर्स में भी आना है, एंड फुल पैसा वसूल, मेस्मराइजिंग ब्यूटी। यही कि इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती है। आई हैव ऑल्सो ट्रैवल्ड हियर अलोन विथ माई डॉटर। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी। सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं और हद से ज़्यादा वेलकमिंग है। यकीनन गुलमर्ग सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है, जहां दुनिया भर से सयाह तो राग़िब होते ही हैं, ताहम मकामी लोगों के लिए भी स्कीइंग के हवाले से बड़ा प्लेटफॉर्म है। महकमे खेल और दीगर मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सरमाई खेलों की जानिब
राग़िब करे और इन्हें मुनासिब तरबियत फराहम करते हुए स्कीइंग के मैदान में अपनी पहचान बनाने का मौका फराहम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्ग से मुनीर हुसैन हुर्राह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के साथ ही यहां सियासी सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी और कई सियासी जमातों के लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से कश्मीर में सियासी माहौल फिर कायम हो रहा है। पहले यहां की बड़ी जमातों के साथ वाबस्ता सेकेंड लाइन लीडरशिप ने सियासी सरगर्मियां शुरू की और वहीं उसके साथ अब छोटी और नई पार्टियां भी मंजर पर आ रही हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सेव पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी का कहना है कि वो अवामी खिदमात के जज्बे के साथ मैदान में आई है ताकि लोगों के मसाइल का अजाला किया जा सके। सेव पार्टी ने यहाँ की बड़ी सियासी जमातों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अवाम के साथ हमेशा नाइंसाफी की और मौजूदा हालात के लिए भी वही लोग जिम्मेदार है। सेव पार्टी ने मजीद कहा कि सियासी मंशूर में कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाना शामिल है। और जम्मू कश्मीर सेव पार्टी का जो मुद्दा व मकसद है वो यही है कि एक नया एरा शुरू हो जाए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाए, डेवलपमेंट हो जाए और जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं जो आज तक तरह तरह के मुश्किलात से गुज़र चुके हैं उनको उन मुश्किलात से निजात दिलाना है। तो उसके लिए हमारे पास बाज़ाब्ता एक मिशन है, एक एजेंडा है और हम यहाँ लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि वो जम्मू कश्मीर सेव पार्टी का साथ दें, इसके साथ हाथ मिलाएं। क्योंकि जम्मू कश्मीर सेव पार्टी का अपना एक मंशूर जो है वो मैं इस तरह बयान करूं, हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर एजेंडा, व्हाट इज़ आवर ओपिनियन, व्हाट वी वांट। सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है तो हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, दे मे बी फ्रीड। जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स है, जो गवर्नमेंट की दानिश्त में है, जो सबकी नजरों में है, उनका मुहासबा किया जाना चाहिए। उनको देख लेना चाहिए कि किसने कितना बनाया। देयर शुड बी एन ओपन ट्रायल अगेंस्ट दोज पॉलिटिकल लीडर्स। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नष्ट होने के बाद जिला इंतजामिया रामबन ने फौरी इक़दामात करते हुए जिला कॉम्प्लेक्स को मिलाने वाले वाहिद सड़क राब्ते पर तजदीद व मरम्मत का काम शुरू किया। वाज़ेह रहे कि गिवन इंडिया की जानिब से गुज़श्ता साल 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान सड़क राब्ते को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस मसले को कई बार उजागर करने के बावजूद इस मामले पर कार्रवाई न होने से अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही थी। ताहम न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से खबर नश्र करने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हुई और अवाम के देरीना मसले को हल किया गया, जिस पर अवाम ने न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश की। ये कल न्यूज़ चली थी 18 न्यूज़ उर्दू चैनल की, तो इन्होंने रोड के बारे में बताया था कि चलाई थी रोड और उन्होंने आज काम लगाया है। तो बहुत अच्छा है कि ये किसी ऑफिस को लिंक करता है रोड, और बहुत अच्छा है कि ये लगता है कि ये रोड अच्छा है। कुलगाम में आज बाद दोपहर एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान को जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ओके कुलगाम के मकाम पर एक स्कूटी मुखालिफ सिमत से आ रही एक टाटा मोबाइल गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार 3 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से तजमुल शेख और दानिश अल्ताफ साकिनान मोहम्मदपुरा कुलगाम हलाक हो गए। जख्मी हुए नौजवान की शिनाख्त फुरकान रियाज साकिना मोहम्मदपुरा के बतौर हुई है। पुलिस ने अस्पताल और मौके वारदात पर जाकर तफसील हासिल करते हुए मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। आपकी वसादत से पूरे समाज को, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चा है, जब गवर्नमेंट का एक कानून है कि 22 इयर्स पहले लाइसेंस इशू नहीं करते हैं, तो एक पेरेंट को चाहिए कि वो भी अपने बच्चे को गाड़ी न दे। खास कर गवर्नमेंट की गलती, बैंक वाले गलती, यमो बैंक वाले अंधाधुंध कर्ज त्रो तिमन गुजारे वनकन यो गो ना अम ब्रोट गो ये वाक़ा हो तम गाड़ी नी इथे वात कलगुम ये जवान हो मौत, मगर सह नादान, तमिस नल आसान कह ट्रेनिंग। बहरहाल यह सरासर कसूर
बह वन ये गवर्नमेंट। कश्मीर में दफा 370 के खात्मे और बदले हुए हालात के बीच कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए ख्यालात और बातचीत की सतह पर रिसर्च सामने आने लगी है। बेटर डेमोक्रेसी नामी इदारे के जरिए कश्मीर को लेकर न सिर्फ रिसर्च की गई है बल्कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें मुल्क की जानी मानी हस्तियां कश्मीर को लेकर अपने ख्यालात और नजरियात लेकर पहुंचे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो रही ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर पर मरकूज है। दफा 370 के खात्मे के बाद और यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के पस मंजर में इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर बात हो रही है कि कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में कई जानी मानी शख्सियात पहुंची। कॉन्फ्रेंस में कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस फौरन शुरू होना चाहिए, तो कई दानिश्वरों ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये सजेशंस होंगे, तो फिर इसके नतीजे में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कंक्लूजन में पहुँचे। इस वक्त मेरा कुछ कहना नामुनासिब होगा। मैंने इसके बारे में लिखा भी है। इसमें तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि कई कदम बहुत ज़रूरी हैं जो फौरी तौर पे उनको बहाल करने की ज़रूरत है, और उसका सबसे अव्वल जो ज़रूरत है कि एक जमहूरी निज़ाम वापस फौरी तौर पे कायम करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की तरक्की, इक़्तिसादी हालात, देही और शहरी तरक्यात, सेहत खिदमात समेत दीगर तमाम अहम पहलुओं पर बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस से पहुंचे लोगों ने कहा कि वो सिर्फ टकराव और मनफी पहलुओं पर बात करने के बजाय इन सब से आगे बढ़कर तालीम और रोजगार जैसे पहलुओं पर जोर देना चाहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आगे सहायक होते हैं। तो और जहाँ तक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का सवाल है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। लोगों से सीधे संपर्क करके लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी देके इस दिशा में अधिक प्रोग्रेस हो सकता है। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं पाकिस्तान की नीयत क्या है उस इलाके में, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक है। और उनकी आवाज़ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है इन अ मीनिंगफुल वे। तो हम यहाँ इस मंत्रणा के थ्रू क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि एक एनुअल इवेंट हो जो कि एक स्पेस क्रिएट करे फॉर सिविल डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड डिबेट, जहाँ पे हम मुद्दे जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिनके बारे में हम रोज़ पढ़ते हैं, उनको ओपिनियन से अलग लेके उसके फैक्ट्स को अच्छे से स्टडी करें और साल दर साल उन फैक्ट्स पे फिर मंत्रणा करें कि कैसे ये फैक्ट्स को इम्प्रूव करना है। मुद्दा इस देश के लिए इस समय कोई नहीं है। किसी भी तरह से आप देखें, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, आप आर्थिक समस्याओं की बात करें, और या आप संविधान के प्रावधानों की बात करें, या कुछ लोगों को जो चिंता है, जो आंदोलन हो रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ किया गया पुनर्गठन राज्य का, उसके कारण संविधान की आत्मा का हनन हुआ है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बंद हुई है, तो आप किसी भी चर्चा को शुरू करें, कश्मीर उसके केंद्र में है। तो मुझे लगता है इसलिए इस मौके पे जो सोशल एंड पॉलिटिकल रिसर्च फाउंडेशन नामक ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया है मंत्रणा का, वो बहुत सार्थक और मौजू है। अगर हम यही देखते रहे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारा फोकस है कि हम सोल्यूशन पे बात करना चाहते हैं, तो उसी एम से हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होपफुली आगे जाके हम फिर से पीसफुल कंडक्ट कराएंगे, जहाँ से हम एक्चुअल स्टेक होल्डर्स जो कश्मीर में हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, सबसे पूछ सकते हैं कि आप लोग चाहते क्या है यहाँ का। सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करना चाहते कि वहाँ पे आर्मी क्या कर रही है, 370 से क्या हो रहा है। हम बात करना चाहते हैं कि एजुकेशन से आप क्या चाहते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट से क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर में बदले हुए हालात ने रियासत में अलग तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। तवील वक्त तक इंटरनेट खिदमत बंद रहा है, सियासी माहौल में भी तब्दीली आई है। ऐसे में कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क गौर ख्वास कर रहा है, और यही बड़ी बात है, चूंकि बात से ही बात बनती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चोलगाम कुलगाम में दौरान शब जंगली जानवरों ने
कोहराम मचाकर कई भेड़ हलाक किए, जिसकी वजह से न सिर्फ लाखों रुपए के नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि इलाके में जानवरों की मौजूदगी से सरासीमगी फैल गई है। इतलात के मुताबिक जंगली जानवरों ने अब्दुल मजीद के गाँव खाने में दौरान शब कई भेड़ हलाक किए। मुतासरा कुंबा भेड़ पालन से अपना जरिया मुआश कमा रहा था। लोगों ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। जंगली बलाई क्या रात के बलाई जो जानवर जनाब यमो कर तीर 10-15 ते जख्मी 5-10 मरिक ते यमन ना सहारा पड़न अमिस ना बिचारस भी कहीं सहारा। तमाम महल गो परेशान, तमाम इंसान अड़ि मज हार्ट पेशेंट कह तमन गो दम अंदरी नबर ना कहीं नीर द्राय नबर पे और योर सारी द्राय नबर ये वो तितर बितर गुमुत तेरन तीर 10-15 अमिस खेमित अमिस युत सहार यह अमिस रोजगार युत अमिस मुस्तकबिल युत पे अमिस खाम खाम अयाल दशवे बस आज हैंडीकैप्ड अमिस आज ब्रो 3 वरी ट्यूमर यह क्रिटिकल इंसान अमिस अमिस खानदारन अडल पे अमिस खाम खाम अयाल क्या अमिस बच्चे बच्चे लकुट लकुट खाम अयाल अमिस वन DC सोबस गुजारिश कर रिक्वेस्ट कर इल्तिजा कर कि तुम सूजन योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम तुम करें सर्च तिक बेहमा ये शांति सान बेहमा अमन सान सान दिलन मज रोजान कह खौफ तो डर बे गमिस तह इमदाद गन तिज बिचारस युत सहारा अमिस ना अम सहारा कहें। ब्लॉक देवसर से वाबस्ता पंच सरपंचों ने आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देवसर में एहतजाज किया। पंच सरपंचों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमे ने पंचायत कानून के उसूल जवाबित को बलाएताक रखते हुए ग्राम सभा में फेरबदल करने की कोशिश की। सरपंचों ने कहा कि उनकी राय को मुस्तरद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से जल्द मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संजीदगी से गौर नहीं करती है तो वो मुस्तफी हो जाएंगे। आपने B2B1 प्लान किया, बैक टू विलेज प्लान किया, उसी में आपने बोला नरेगा का प्लान दे दीजिए, उसी में आपने बोला 14th FC का प्लान दे दीजिए। आज मजबूरी क्या हुई ACD साहब को, DPO साहब को कि वो दोबारा से खारगोंड हलके में ग्राम सभा करने गए और विदाउट इंफॉर्मेशन कंसर्न BDC, विदाउट इंफॉर्मेशन कंसर्न सरपंच, विदाउट इंफॉर्मेशन कंसर्न पंचायत आप ग्राम सभा कर रहे हो। इसका मतलब है कि पंचायत किसी खाते में नहीं है। अग्रिकलान मागाम के नक्शबंद कॉलोनी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यहाँ रिहायशी मकानात के सहन और गाँवखानों में पानी दाखिल हो चुका है, साथ ही अंदरूनी सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई है। मकानात के सहन और सड़कों पर जमाशुदा पानी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। अग्रिकलान के लोगों ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया और पानी की निकासी का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि इलाके में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है। जब इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने नायब तहसीलदार गोम अहमदपुरा से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि यह मसला आइंदा चंद दिनों में महकमे रेवेन्यू के साथ उठाया जाएगा और पानी की निकासी भी की जाएगी। यहाँ सर हमारी बड़ी आबादी है, गांव में मोहल्ले में पानी घरों में दाखिल अंदर हुआ है, सड़कों में भी पानी है और हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि हमारी जो सर रोड पे पानी है ये हल करे। बना पकन तुम वो पे कीमती बूट अन मुश्किल गसान तहसील कल सबक सुबह वन ब्या सबक कल वन दर सह वन ब्या गई पे मजबूर आज पकड़ बच्चे वच्चे हद गाँव वाव तमन कर बेकि जाए शिफ्ट वस कोता आब यपर कन ना वन नेरन आब त सारान ये आब मज बच्चे कड़ान नखन पे वातान रोडस पे। चोरा में ऑल J&K PHE-CP वर्कर्स और लैंड डोनर्स के बैनर तले भारी तादाद में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। ये मुलाजमीन गुज़िश्ता कई महीने से बकाया जा तनख्वाहों को वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि तनख्वाहें न मिलने की वजह से उन्हें सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। PHE वर्कर्स जम्मू कश्मीर के सदर तनवीर हुसैन ने कहा कि वो अब मोहब्बत और लगन से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, ताहम महकमा उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर 6 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो 7 से 8 फरवरी तक मुकम्मल काम छोड़कर हड़ताल करेंगे।
फरवरी तक हमारे तमाम मुद्दे, चाहे वो पेंडिंग वेजेस का मसला है, चाहे वो मंथली वेजेस का मसला है, या वो रेगुलेशन का मसला है, अगर वो मुद्दे हल नहीं होते हैं तो 7 फरवरी शाम 8 बजे से PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ जो कॉल आई है उसको भरपूर सपोर्ट होगी और पूरी तरह से लखनपुर से लेके पुंछ से लेके डोडा, किश्तवाड़ से लेके श्रीनगर तक पूरा पानी की सप्लाई ठप होगी और 7 फरवरी शाम 8 बजे से ये स्ट्राइक शुरू होगी। अगर उसके बाद भी सरकार को या यहाँ लोगों को कोई परेशानी आती है तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और डू एंड डाई है, या सरकार हमारा फैसला करे, अगर सरकार हमें नहीं रखना है, हमारा 7 साल का जो बकाया है वो बकाया देके हमें दे, हम घर जाएंगे, लेकिन फ्री में अब हम काम नहीं करेंगे। ब्लॉक पुलवामा के मुख्तलिफ देहात से वाबस्ता चंद पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने आज DC ऑफिस पुलवामा के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी नौजवानों ने BDO पुलवामा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो दिही इलाकों में तामीराती काम मंजूर नज़र अफराद को ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एहतजाजियों ने कहा कि तामीराती कामों में भी मुबैना तौर पर धांधलियां हो रही हैं। इन नौजवानों ने इस मामले में DC पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है और BDO ऑफिस में कामों की तहक़ीक़ात की मांग की है। ऑफिस पुलवामा इज़ दैट जो रेजोल्यूशन वहाँ बनते हैं, जो गांव में रेजोल्यूशन वो इंडोर बनते हैं। अवकाफ की स्टैंप उनके पास खुद ही पंचायत सेक्रेटरीज़ के पास हैं, जिसकी हमने बार बार BDO साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जिनको आपने काम दिया, जो रेजोल्यूशन आपने बनाए, उनको पब्लिक की जाए। DC साहब के क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि 100 बंदों के लिखे हुए दस्तखत होने चाहिए, उनके मैंशन फ़ोन नंबर होने चाहिए। जो हर रेजोल्यूशन पे मिसिंग है, इंडोर रेजोल्यूशन बना के फेवर्ड बंदों को काम दिया जा रहा है। ह्यूज करप्शन BDO ऑफिस पुलवामा में ओपन है। हम DC साहब से रिक्वेस्ट करें कि इंक्वायरी बिठाएं, टीम बिठा के इस करप्शन को, इस मैनस को दूर किया जाए। बेरोज़गार नौजवान है यहाँ पर। हम BDO साहब के पास गए थे काम मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने काम देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो कहता है कि जो पुराने बंदे यहाँ पर काम कर रहे थे मैं उन्हीं को काम दूंगा। लेकिन आप सर बताइए कि ये हक जो है ये तो अनएम्प्लॉयड यूथ का हक है, उनको काम हमको देना चाहिए, लेकिन वो हमको दे नहीं रहा है। जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है। मीर ने कहा कि जिला पुलवामा में राब्ता सड़कों और बिजली निज़ाम की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मीर ने DC पुलवामा से इस हवाले से मुदाखलत करने की अपील की है। पुलवामा में लोगों को बहुत सारे मसाइल है, मुश्किलात है, रोड, पानी, बिजली। बर्फ़बारी के बाद यहाँ सड़कें और पानी दरहम बरहम हो गई है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा को ये बात बताना चाहते हैं कि लोगों को इन मसाइल का जल्द अज जल्द हल किया जाए। लेह में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वफ्द और LAHDC लेह के चेयरमैन गयाल P वांग्याल के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर लेह जिले के सरकारी स्कूलों को CBSE के साथ जोड़ने की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। इस मौके पर कई आला अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन वांग्याल और JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी ताशी ने मकामी तलबा की आसानी के लिए लेह में CBSE का एक रीजनल ऑफिस कायम करने की बात वफ्द के सामने रखी। वफ्द ने इस मुतालबे को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। ITBP की 5वीं बटालियन की जानिब से लेह में नौजवानों को भारत दर्शन टूर पर दिल्ली होते हुए कोची रवाना किया जाएगा। 8 रोज़ के टूर पर जा रहे तलबा को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। इसका मकसद ITBP और मकामी नौजवानों का आपसी तालमेल बढ़ाने के अलावा तलबा की जानकारी में इजाफा करना था। यौम जमहूरिया की मुनासबत से महिंद्रा एंड महिंद्रा करगिल की जानिब से विंटर मोटर व्हीकल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर LAHDC करगिल और DC करगिल ने रैली को खरी सुल्तान शो स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को एम्बोटिंग लाटॉप पर रवाना किया गया। पहली बार हमने एक विंटर ऑटो एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ आके हमने राष्ट्रीय ध्वज फैलाया है और हमें बहुत गर्व फील होता है कि इस हाइट पे आके -25 में आके हम एक नेशनल इंटीग्रेशन का ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस समय हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है और साथ साथ हम पूरे कारगिल को एक विंटर टूरिज़्म के हब की तरह हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके साथ नेक्स्ट ईयर शायद होपफुली हम इसके साथ काफ़ी और एक्टिविटीज़ को इंकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। रिपब्लिक डे का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को। साथ में आज हम ये फ़ख्र से कहेंगे कि इस टाइम पे मैं और मेरे साथी जिन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया -30 डिग्री में 14,000 फीट
ऊपर जो है आके तिरंगा ऊंचा कर रहे हैं, देश का परचम लहरा रहे हैं। करगिल में LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने 12वीं आइस हॉकी कप का इफ्तिताह किया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों की 13 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान फिरोज खान को आइस हॉकी रिंग की खस्ताहाली और विंटर स्पोर्ट्स के फरोग के हवाले से मीडिया के सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एतराफ़ किया कि फंड्स की कमी और कई दीगर मसाइल की वजह से ये काम रुके पड़े हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि ये मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। आने वाले जो बजट है हमारे, उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट पैसा रख के पहले हम ग्राउंड में जो इनका स्टैंडर्ड क्या होता है उसी स्टैंडर्ड से हम इसको प्रमोट करेंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी है आपका सीटिंग का, प्लस आपका इसमें जो प्लेयर्स के चेंज रूम, टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हम जल्दी ही आज ही जाके हम एक DPR के लिए R&B वालों को मैं लिख दूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रमोट कोई भी चीज़ हो, जब तक लोकल, चाहे वो टूरिज़्म में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, जब तक हमारे प्राइवेट क्लब्स आगे आके इसको डेवलप नहीं करेंगे तब तक सरकार इतना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बेशक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ग्राउंड प्रोवाइड करना जो है वो हमारा काम है, वो ज़रूर हम करेंगे। शेरवानी कॉलोनी बारामूला से मोहम्मद मुदस्सिर चेचई वल्द लालदीन चेचई 22 जनवरी से लापता हो गया है। उसी रोज़ 12वीं जमात के इम्तहानी नताइज जारी हो गए थे और मोहम्मद मुदस्सिर चेचई इम्तहान में नाकाम हो गया था। अगर किसी को भी मुदस्सिर के बारे में कोई जानकारी मिले तो TV स्क्रीन पर नजर आ रहे मोबाइल नंबर पर राब्ता कायम करे। वाज़ेह हो कि ये हथलंगा ऊडी के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, ताहम अब बारामूला में रिहाइश पजीर हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे समाजी बहबूद की जानिब से एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद मेहमान खुसूसी थे। वर्कशॉप में बांडीपुरा, सुंबल और हाजन ब्लॉक में आंगनवाड़ी मराकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों, हेल्परों और सुपरवाइजरों ने शिरकत की। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किए गए इस वर्कशॉप के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रोथ चार्ट बनाने के हवाले से तरबियत दी गई। वर्कशॉप के दौरान बताया गया कि अब हर माह हर एक आंगनवाड़ी मरकज़ में नौज़ायदा बच्चों की उम्र, वज़न और कद की जाँच होगी ताकि बच्चों की सही नशोनुमा के बारे में ठीक जानकारी सामने आ सके।